Hello students, good morning. Welcome to SS Online Classes. Students, we were reading chapter 9 Independence Day of our English Literature book as we Shastra. Students, in our last video, our topic was summary of 9 to 12 number stanzas. So students, included this topic, we have read and explained summary of 9 to 12 number stanzas, which is page number 75 of the chapter 9 Independence Day. And students, today we are going to continue this chapter 9 Independence Day. And students, today's our topics are, our first number topic is summary of 13 to 15 number stanzas. Second number topic is about the author. And students, our third and last number topic is exercise A, mark these statements as true or false F, which is page number 76 and 77 of the chapter 9 Independence Day. Okay, so all students, please press partial to class and listen to my words clearly, because students, today firstly we shall read and explain summary of 13 to 15 number stanzas, and then we shall read about the author of this chapter 9 Independence Day, and last we shall read and solve exercise A, mark this statement as true or false F, which is page number 76 and 77 of the chapter 9 Independence Day in our today's class. Okay, so all students, open page number 76 in your English Literature book as we Shastra, and let's see 13 number stanza of the chapter 9 Independence Day. Students, we have read in our last video that Ma is telling the meaning of Hindus and giants favorite color. Okay, students, Ma have told the meaning of Hindu's favorite color, and in this stanza Ma is telling the meaning of giant's favorite color. Okay, let's read this stanza. Giant's room is blue because he loves to swim. Okay, तो जयंत का कमरा नीला है क्योंकि वह तैरना पसंद करता है. क्लियर, स्विम मीन्स तैरना. इन द सेम वे, ठीक उसी प्रकार, the colors in our flag also mean something and tell us about India. Okay, in the same way, ठीक इसी प्रकार, the colors in our flag, जो हमारा फ्लैग है, जो हमारा झंडा है, इसमें जो कलर है ना, also means something, इसका भी कुछ मतलब है, and tell us about India, और ये हमें इंडिया के बारे में कुछ बताता है. क्लियर. This saffron, saffron means केसरिया. Okay, the saffron color on top stands for strength and courage. Okay, this saffron it's mean केसरिया. Okay, color means रंग, तो stands on top stands. Okay, तो हमारे जो फ्लैग है, हमारा जो झंडा है, उसमें जो saffron कलर है, जो हमारे फ्लैग के सबसे टॉप पर है, इट्स मीन टॉप पर, इट्स मीन सबसे जो ऊपर है. ओके, जो केसरिया रंग सबसे ऊपर है, वो किस पे स्टैंड करता है? स्ट्रेंथ एंड करेज पे. ओके, स्ट्रेंथ द मीन ऑफ स्ट्रेंथ इज ताकत, शक्ति या बल. ओके, एंड करेज मीन साहस. तो जो हमारे फ्लैग का जो टॉप पे जो कलर है ना, सैफ्रॉन कलर, जो केसरिया रंग है, वो स्ट्रेंथ एंड करेज पर स्टैंड है. इट्स मीन कि वो शक्ति या बल और साहस का प्रतीक है. ओके, शक्ति या बल और साहस का प्रतीक है. क्लियर. एंड ग्रीन, आस्क्ड इंडो ने तुरंत पूछा, एंड ग्रीन और हरा, द ग्रीन कलर शोज द फेरिलिटी एंड ग्रोथ ऑफ द लैंड, सेड पापा. पापा ने क्या आंसर दिया? पापा सेड, ओके, पापा ने कहा द ग्रीन कलर, ओके, जो हरा रंग है वो शोज, इसमें प्रदर्शित करता है द फर्टिलिटी एंड ग्रोथ ऑफ द लैंड. ओके, स्टूडेंट्स, है द मीनिंग ऑफ फर्टिलिटी. फर्टिलिटी मीन्स स्टूडेंट्स होता है FERTILITY. ओके, फर्टिलिटी इट्स मीन की उर्वरता. ओके, तो एंड लैंड मीन्स भूमि, एंड ग्रोथ मीन्स होता है वृद्धि. ओके, तो पापा ने क्या बोला? पापा ने कहा द ग्रीन कलर शोज द फर्टिलिटी एंड ग्रोथ ऑफ द लैंड. तो पापा ने कहा जो हरा रंग है ना, वो भूमि की उर्वरता और वृद्धि का प्रतीक है. ओके, वो भूमि की उर्वरता और वृद्धि को प्रदर्शित करता है. क्लियर स्टूडेंट्स, इट्स मीन जो हमारा ग्रीन कलर होता है वो हरियाली का प्रतीक होता है, वो भूमि की उर्वरता और वृद्धि को दर्शाता है. क्लियर. लेट्स सी नेक्स्ट, जस्ट लाइक दैट. ओके, जस्ट लाइक दैट इट्स मीन ठीक इसी तरह. जो व्हाइट कलर होता है ना, व्हाइट कलर शोज हॉनेस्टी एंड पीस ऑफ द लैंड. ओके, जो व्हाइट कलर होता है, शोज मीन्स प्रदर्शित करता है, हॉनेस्टी इट्स मीन ईमानदारी, एंड मीन्स और पीस इट्स मीन शांति ऑफ द लैंड, इट्स मीन भूमि की. ओके, जस्ट लाइक दैट इट्स मीन कि ठीक इसी तरह व्हाइट कलर शोज हॉनेस्टी एंड पीस ऑफ द लैंड, कि जो व्हाइट कलर है, सफ़ेद रंग है, वो भूमि की ईमानदारी और शांति का प्रतीक होता है. ओके, वो भूमि की ईमानदारी और शांति को प्रदर्शित करता है. क्लियर. व्हाइट आल्सो टेल अस टू बी ट्रूथफुल, और जो व्हाइट होता है वो हमें सत्यवादी रहने के लिए भी कहता है. ओके, ट्रूथफुल इट्स मीन होता है सत्यप्रिय या सत्यवादी या सच्चा, और जो व्हाइट कलर होता है वो हमें सत्यवादी रहने के लिए भी कहता है. क्लियर. एंड द ब्लू व्हील आस्क्ड जयंत. अब जयंत ने क्या क्वेश्चन किया? जयंत ने पूछा एंड द ब्लू व्हील, और नीला चक्र. व्हील मीन्स होता है चक्र. ओके, स्टूडेंट्स, फ्लैग देखा है ना, तो फ्लैग में टॉप पे सैफ्रॉन कलर होता है, एंड मिडिल पे वाइट कलर होता है, एंड बॉटम पे सबसे लास्ट में ग्रीन कलर
होता है ना, और वाइट कलर की जो स्ट्रिप होती है, ओके, सफ़ेद कलर की जो पट्टी होती है उस पर एक ब्लू कलर का व्हील होता है, ओके। तो जयंत ने जयंत ने क्वेश्चन किया कि एंड द ब्लू व्हील, और नीला जो चक्र है दैट इज़ द अशोक चक्र, ओके। तो दैट इज़ द अशोक चक्र। माँ ने तुरंत ऐड किया उसके वर्ड्स में, ओके, उनके उसके शब्दों में जोड़ा, बोला दैट इज़ द अशोक चक्र, ओके, वह अशोक चक्र है। एंड इट हैज़ 24 स्पोक्स, दीज स्पोक्स रिप्रेजेंट द 24 प्रीसियस आवर्स ऑफ द डे, ओके। तो माँ ने क्या बोला, माँ ने कहा कि वह अशोक चक्र है एंड इट हैज़ 24 स्पोक्स। स्पोक्स में स्टेंस होता है, या द मीनिंग ऑफ स्पोक्स दैट rods that join the edge of a wheel to its center, okay. इट्स मीन कि छड़े जो एक पहिए के किनारे को उसके केंद्र से जोड़ती, उसे बोलते हैं स्पोक्स, इट्स मीन तीलियां, ओके। तो माने बोला एंड इट हैज़ 24 स्पोक्स, ओके। और जो हमारा जो ब्लू व्हील होता है ना, नीला चक्र होता है, उसमें 24 तीलियां होती है, ओके। एंड दीज स्पोक्स रिप्रेजेंट, और जो ये तीलियां होती है ये रिप्रेजेंट करती, प्रदर्शित करती है दी 24 प्रीसियस आवर्स ऑफ द डे। इट्स मीन्स 24, इट्स मीन 24, प्रीसियस इट्स मीन कीमती या बहुमूल्य, ओके। आर्स मीन्स घंटे, HOURS, आर्स इट्स मीन घंटे ऑफ द डे, इट्स मीन दिन के, ओके। तो माँ ने क्या कहा, माँ ने कहा कि वह अशोक चक्र है और इसमें 24 तीलियां होती है, ओके। और ये जो स्पोक्स है, ओके, ये जो तीलियां होती है ना 24, ये हमारे जो दिन के जो 24 प्रीसियस आवर्स है ना, जो हमारे दिन के 24 कीमती, 24 बहुमूल्य जो घंटे हैं उन्हें प्रदर्शित करती है, ओके, क्लियर। Students, Ma, does the color of my skirt have any meaning? Asked Indu. अब इंदु ने क्या ask किया? Asked, it's a second form of ask. Ask means पूछना, asked means पूछा। इंदु ने पूछा, Ma, does the color of my skirt have any meaning? क्या मेरी स्कर्ट के कलर का भी कोई मीन है? इट्स मीन क्या मेरी स्कर्ट के रंग का भी कोई मतलब है? ओके। तो आई एम श्योर इट हैज सम मीनिंग बट दैट इज फॉर अनदर डे, सेड Ma as everyone laughed. ओके। तो आई एम श्योर इट्स मीन कि मुझे यकीन है, ओके, मैं निश्चित हूँ या मुझे यकीन है, इट हैज़ सम मीनिंग कि इसका भी कुछ अर्थ है, ओके। आपकी स्कर्ट का के कलर का भी कुछ अर्थ होता है, ओके, बट दैट इज़ फॉर अनदर डे, ओके। इट्स मीन कि लेकिन अभी इसे हम नेक्स्ट डे के लिए रखते हैं, ओके, इसे और किसी दिन के लिए रखते हैं, ओके। इसे मैं किसी और दिन एक्सप्लेन करूँगी कि आपके जो स्कर्ट का कलर है उसका क्या मीन है, ओके। सेड Ma as everyone laughed, ओके। तो जैसे ही माँ ने कहा ना कि आप, मुझे यकीन है कि इसका भी कुछ अर्थ है, आपकी जो स्कर्ट का कलर है इसका भी कुछ अर्थ होगा, लेकिन वह एक और दिन के लिए, ओके। इट मीन मैं इसे किसी अगले दिन बताऊंगी, ओके, किसी दिन एक्सप्लेन करूंगी कि आपकी स्कर्ट के कलर का क्या मीन है, ओके। और जैसे ही माँ ने ये कहा कि इसे अगले दिन के लिए रखते हैं तो सभी हंस पड़े, क्लियर। लॉफ्ट इट्स मीन हंसना, ओके, हंस पड़े। लॉफ्ट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ लॉफ्ट, लॉफ्ट मीन्स हंसना, लॉफ्ट मीन्स हंस पड़े, क्लियर। So students, we have read 13 to 14 number standard of this chapter on Independence Day, and I hope you must have understood the summary of these standards, 13 to 15 number standards. Students, let's see. Students, the meaning of spokes is rods that join the edge of a wheel to its center. Okay, rods that join the edge of a wheel to its center. It's mean कि छड़े जो एक पहिए के किनारे को उसके केंद्र से जोड़ती है उसे बोलते हैं स्पोक्स, इट्स मीन तीलियां। Students, there are 3 types of festival: religious, seasonal and national. तो स्टूडेंट जो फेस्टिवल्स होते हैं, त्योहार होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं, ओके। रिलीजियस इट्स मीन धार्मिक, हमारे जो रिलीजियस फेस्टिवल होते हैं वो धार्मिक फेस्टिवल को बोलते हैं रिलीजियस फेस्टिवल, जैसे हमारा होली हो गया, दिवाली हो गया, ओके। तो ये हमारे रिलीजियस फेस्टिवल हो सकते हैं। सीजनल, ओके, मौसमी हमारे फेस्टिवल होते हैं, ओके। एंड नेशनल इट्स मीन हमारे राष्ट्रीय जो त्यौहार होते हैं वो होते हैं, जैसे इंडिपेंडेंस डे हो गया, रिपब्लिक डे हो गया, ओके, गांधी जयंती। स्टूडेंट्स, द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर 9 इंडिपेंडेंस डे इज Agamoni Barbarova. Students, let's read about the author of this chapter in Independence Day. About the author, it's mean लेखक के बारे में। Students, Agamoni Barbarova was born in Assam. ये जो हमारी author है अगमोनी बरबरोहा, इनका जन्म हुआ था असम में, ओके। She writes short stories and runs a popular blog internet diary, ओके। तो स्टूडेंट्स, वह छोटी कहानियाँ लिखती है और एक लोकप्रिय ब्लॉग इंटरनेट डायरी चलाती है, ओके। She loves writing for children, ओके। वह बच्चों के लिए लिखना पसंद करती है, क्लियर। सो स्टूडेंट, वी हैव रीड अबाउट द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर इन इंडिपेंडेंस डे एंड आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड आवर सेकंड नंबर टॉपिक अबाउट द ऑथर, क्लियर। स्टूडेंट्स, लेट्स सी एक्सरसाइज ए। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज ए इज मार्क द स्टेटमेंट्स एज ट्रू, टी और फॉल्स। मार्क मीन्स अंकित करिए, दिस मीन्स इन स्टेटमेंट्स, इट मीन कथन, एज मीन्स जैसे, ट्रू मीन्स सत्य या सही, टी और मीन्स अथवा, फॉल्स मीन्स असत्य, गलत, एफ, ओके। मार्क दिस स्टेटमेंट्स एज ट्रू, टी और फॉल्स, एफ इट्स मीन इन कथनों को सत्य, इट्स मीन सही के लिए टी,
अथवा असत्य, इट्स मीन गलत के लिए F अंकित करिए. क्लियर. Students, the first number statement of this exercise is the story takes place on 26 January. The story it means कहानी, takes means लेती है, place means स्थान, on means पर, 26 January it means 26 जनवरी. The story takes place on 26 January. It's mean कि कहानी 26 जनवरी का स्थान लेती है. So students, we have read this chapter on Independence Day and we know that this story takes place on 15 August because students in this story we have read about Independence Day and we always celebrate Independence Day on 15 August. Okay. So students, your first number statement it's a false statement. So all students mark F in this first number box. Students, your second number statement is the flag was hoisted and everyone sang the national anthem. The flag means झंडा, was means था, hoisted it means फहराया गया, and means और, everyone means प्रत्येक ने, sang means गाया, sang is the second form of sing, sing means गाना, sang means गाया. The national anthem it's mean राष्ट्रगान. The flag was hoisted and everyone sang the national anthem. It mean झंडा फहराया गया और सभी ने राष्ट्रगान गाया. Students, so second number statement it's a true statement. Okay, so all students mark D in this second number box. Students, so third number statement is the children ran to rooftops to fly their kites. The children it's mean बच्चे, ran means दौड़ कर गए, to the rooftops it's mean छत के ऊपर, to fly it's mean उड़ाने के लिए, their kites it's mean अपनी पतंगे. Okay. The children ran to the rooftops to fly their kites. It's mean बच्चे अपनी पतंगे उड़ाने के लिए दौड़कर छत के ऊपर गए. Students, और third number statement it's a true statement. So all students mark T in this third number box. Okay. Students, the fourth number statement is some boys bullied Indu and Jayant while they were flying kites. Some means कुछ, boys means लड़के, bullied it's mean धमकाया या डराया. Okay. Indu and Jayant while means जब, they means वे were flying kites. It's mean पतंगे उड़ा रहे थे. Students, your four number statement is some boys bullied Indu and Jayant while they were flying kite. It means कुछ लड़कों ने इंदु और जयंत को धमकाया, उन्हें डराया जब वे पतंगे उड़ा रहे थे. Students, it's correct that some boys bullied Indu and Jayant कि कुछ लड़कों ने इंदु और जयंत को डराया था, उन्हें धमकाया था. ओके, बुलिड मीन्स होते धमकाना, उन्हें धमकाया था, डराया था. लेकिन स्टूडेंट्स ये जो मैटर था ये लास्ट ईयर का मैटर था. ओके, और इस ईयर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था इस स्टोरी में. ओके, तो स्टूडेंट्स योर फोर्थ नंबर स्टेटमेंट इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. सो ऑल स्टूडेंट्स मार्क एफ इन दिस फोर्थ नंबर बॉक्स. क्लियर? Students, turn your page forward and look in this page number 77 and let's see fifth number statement which is last statement of this exercise A of this chapter in Independence Day. Students, your fifth number last statement is mummy told the children about the meaning of the different colors of the flag. Mummy told means कहा, told is the second form of tell, tell means कहना, told means कहा. Okay, the children it's mean बच्चे, about means बारे में, the meaning it's mean अर्थ, of means का, the different it's mean भिन्न भिन्न, अलग अलग, colors means रंगों, of the flag it's mean झंडे के. Okay, मम्मी told the children about the meaning of the different colors of the flag. It's mean मम्मी ने बच्चों को झंडे के अलग अलग रंगों के अर्थ के बारे में कहा. और वी कैन से आल्सो दैट कि मम्मी ने बच्चों को झंडे के भिन्न भिन्न या अलग अलग रंगों के अर्थ के बारे में बताया. क्लियर? तो स्टूडेंट्स योर फिफ्थ नंबर स्टेटमेंट इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट. सो ऑल स्टूडेंट मार्क टी इन दिस लास्ट फिफ्थ नंबर बॉक्स. क्लियर? स्टूडेंट्स मैच योर आंसर. Students, so first number statement it's a false statement, second number statement it's a true statement, third true, fourth false, and last fifth it's a true. Clear? So students, we have read and solved this exercise here of this chapter in Independence Day in our English literature book as semester. And students, I hope you must have understood this exercise. You have no problem in any sentence, in any word in this exercise. Now students, I am going to describe your classroom homework, so all students listen to my words clearly. Students, today's your classwork is that solve exercise A, mark these statements as true, or false, which is page number 76 and 77 of this chapter in Independence Day in your fat English literature notebook with your best handwriting and send me your work here. It's a today's classwork. And students, today's homework is that learn exercise A of this chapter in Independence Day from your fat English literature notebook. It's a today's homework. Okay, so all students, firstly complete your classwork. Solve exercise A, mark these statements as true or false, which is page number 76 and 77 of the chapter 9 Independence Day in your fat English literature notebook with your best handwriting and send me your work here. Thank you.